Good morning, student. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. What we discussed in last lecture? Chapter 1 complete. Non-exit. Non-exact. Okay, so in last lecture we have discussed about the non-exact, and in non-exact we have the four cases. Case number 1 for homogeneous, case number 2 for the integrating factor 1 upon mx minus ny, case number 3 is 1 upon n del m upon del y minus del n upon del x is the function of x, then the integrating factor will be e raised to f of x dx, and the case number 4 is about the 1 upon n 1 upon m del n upon del x minus del m upon del y, okay, is the function of the y, so the integrating factor will be e raised to g of y dy. Okay, so I think we have completed all the examples for that. You can verify here. We done last four examples for that. Yes, have we completed 11, 12, 13 and 14? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so and in last 10 minutes I say that you can verify this example number 3 and example number 2. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Okay, so Yes, sir. this is about the our unit number 1. So is there any doubt, any question in unit number 1? Anybody? Student, any question, any doubt? No, sir. No, sir. No, sir. Okay. In unit number 1, we discussed 1.1 modeling of real world problems in terms of first order ODE. In 1.2, we discussed concept of general and particular solution. In 1.3, we discuss about the initial value problems. In 1.4, we discuss about the existence and uniqueness of solution by illustration. In 1.5, we discuss solutions of first order and first degree differential equation. And in 1.6, we discuss 5 methods for the first order first degree differential equation. First one is the variable separable, second one is the linear, then we go for the Bernoulli differential equation, then we will discuss about the exact differential equation, and at last of this unit we discuss 4 cases of non-exact differential equation. Yes or no? Student, we discuss all the 1.1 to 1.6 in our unit number 1. Yes or no? Yes, sir. What about Yes, others? sir. Yes, okay. Thank you. So now today we are going to discuss about the unit number 2. It is the higher order ordinary linear differential equation. So you can see here this title of this unit, higher order. Higher order means, what do you mean by higher order? Degree more than one. Not a degree, not a degree. Order is there, है ना? Order Power. ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो बेटा डिग्री नहीं आएगा. डिग्री डिफरेंट थिंग्स है, ऑर्डर डिफरेंट थिंग्स है. हमने डिस्कस किया था ना. ऑर्डर मीन्स हाउ मैनी टाइम्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन एग्जिस्ट. ओके, मीन्स उसका डिफ्रेंशिएशन कितनी बार किया गया है, दैट इज द ऑर्डर. एंड जो आपने हाईएस्ट टर्म फाइंड किया है उसका जो पावर है इट डिफाइंस द डिग्री. ओके, सो व्हाट यू मीन बाय हायर ऑर्डर? हायर ऑर्डर मीन्स differentiation will be more than one time. Yes or no? Yes, sir. Okay, that Yes, means sir. in first unit we only deal with dy by dx. Now in unit 2 we deal with d square y by dx square, okay, d cube y by dx cube and so on. nth पावर भी हम डिस्कस कर सकते हैं. ओके, d raised to n y upon dx raised to n. So whenever you see the more than one order in your exam paper, then you have to understand that unit 2 is applicable. Okay, understand everybody? Yes, sir. Yes, sir.
जो आपको एग्जाम्पल दिया है वो यूनिट 2 का है, इससे आपको समझना है, और यूनिट 1 का होगा तो सिर्फ dy/dx उसमें दिया होगा। ओके, नाउ थिंक अबाउट द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे सेकंड पार्ट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स ये तो हुआ ऑर्डर की बात, तो जितने भी ऑर्डर आपको दिया है वो सभी का पावर कितना होगा, 1 होगा। देन यू कैन से दैट इट इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अंडरस्टैंड? Yes, sir. Okay, so this is about the higher order ordinary linear differential equation। तो सबको पता चल गया कि कैसे यूनिट 1 एंड यूनिट 2 को बाइफरगेट करेंगे। एवरीबडी, Yes, sir. आई वांट कंफर्मेशन फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट, प्लीज कंफर्म योरसेल्फ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now in unit number 2 we will discuss first 2.1. It is regarding the model of real world problems of higher order लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मीन्स रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम्स है उसको हम हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज द मॉडल ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स ऑफ हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। Then we will discuss about the 2.2. In 2.2 we will discuss the general solution of higher order ordinary linear differential equation with कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो ये यूनिट में ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। ओके, तो इसमें मेन 2 पार्ट पे फोकस किया जाएगा, कांस्टेंट कोफिशिएंट के लिए एंड वेरिएबल कोफिशिएंट के लिए। तो कांस्टेंट कोफिशिएंट के लिए 3 मेथड है, वो एक जो है वो होमोजीनियस के लिए है, वो मैं डिस्कस करूँगा। नंबर 2 वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स है एंड नंबर 3 अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट है। और जो वेरिएबल कोफिशिएंट है उसमें 2 मेथड्स है, लेजेंडर इक्वेशन एंड नंबर 2 इज सॉरी दिस इज द वन एंड नंबर 2 इज द कॉशी-ऑयलर इक्वेशन। ओके, सो टोटल ये हुआ 5 एंड 2.5 में साइमल्टेनियस होगा, दैट इज द अनदर मेथड। सो यू हैव द 6 मेथड इन योर यूनिट नंबर 2। अंडरस्टैंड एवरीबडी? Yes, sir. Okay, now in 2.3 we discuss the methods for finding particular integrals, वो मैं आपको बताऊंगा जब आएगा तब। 2.4 में हम डिस्कस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ वेरिएबल कोफिशिएंट, और उसमें हम 2 मेथड स्टडी करेंगे वेरिएबल कोफिशिएंट के लिए। इन 2.5 सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये थोड़ा अलग से है। तो आपको इसके लिए पता है कि इफ़ यू हैव द x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड इफ़ यू हैव द 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, तो इसको सॉल्व करना आप जानते हैं कि नहीं? यस और नो? इसको सॉल्व कर सकते हैं Yes, कि sir. नहीं? ओके, इसके Sir. लिए आप, हाँ, इसके लिए आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपने स्टडी किया मेथड है ना, गॉस एलिमिनेशन गॉस जॉर्डन मेथड, है ना, रो इकोलन फॉर्म रिड्यूस टी कॉलम फॉर्म से। तो सिमिलरली यहाँ पे सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसा दिया गया होगा, इससे होगा, देखो डी एक्स डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 2 है, और यहाँ पे डी वाई सॉरी डी एक्स बाई डी टी प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। तो इस टाइप के जो इक्वेशन है मोर देन वन इक्वेशन, तो उसको सिस्टम बोलते हैं, और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, दैट इज द 2.5। ओके, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन इन दिस डिस्कशन। No, sir. Okay, now we go for our 2.1. 2.1 is only for the discussion. Okay, means only for the your स्टडी, मीन्स उसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ कैसे दिखता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो मॉडल ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स ऑफ हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स, जैसे हमने आगे यूनिट नंबर 1 में डिस्कस किया था कि किसी भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उसको हम किस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो कभी कभी वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होते हैं एंड मीन्स लीनियर एंड फर्स्ट ऑर्डर होते हैं, एंड कभी कभी वो क्या होते हैं, हायर ऑर्डर होते हैं,
विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट या फिर विथ वेरिएबल कोफिशिएंट, ये 3 कैटेगरी में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। ओके, जो लीनियर और फर्स्ट ऑर्डर होंगे वो तो फर्स्ट यूनिट में हमने जो जो मेथड सॉल्व किया उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया था न्यूटन्स कूलिंग लॉ, तो न्यूटन्स कूलिंग लॉ में क्या था, वो फर्स्ट ऑर्डर था, तो फर्स्ट यूनिट से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर कुछ सिस्टम में हमको हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगे, तो उसके लिए हम यूनिट नंबर 2 में जो जो हम डिस्कस करेंगे वो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन वो कैसे डिफाइन होते हैं, कैसे फॉर्मुलेट होते हैं, तो उसके लिए हमने लास्ट टाइम यूनिट 1 में डिस्कस किया था कि कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को मॉडल में ले जाना मीन्स क्या है कि कोई आपके पास रिलेशन है, उसका आपको क्या करना है, 1 बाय 1 डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना है और उसमें से आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है उसको रिमूव करना है, तो उसको बोलते हैं मॉडलिंग ऑफ द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? Yes, sir. और दूसरी जो टेक्निक्स हैं वो बाय यूजिंग द फिजिकल लॉ, जो भी हम फिजिकल लॉ जानते हैं, जो भी नेचुरल लॉ है हमारे पास, न्यूटन्स कूलिंग लॉ है, उसी तरीके से न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना, और उसी तरीके से बहुत सारे लॉज हैं, तो उसकी भी हेल्प से हम उसको मैथमेटिकल मॉडलिंग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वही 2.1 में 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, वो दोनों हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे देखो, मैनी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स problems such as study of small amplitude mechanical oscillation, analysis of electric networks, oscillation of mass spring system, bending of beams, detection of diabetes, okay, etc., leads to the formulation and solution of linear differential equation of second and higher order। मीन्स उसको हम फॉर्मुलेशन में ले सकते हैं और फॉर्मुलेशन से हमको क्या मिलेगा, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, और वो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करके हम सेकंड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रैक्टिस में रख सकते हैं। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल लिया है वो LCR सर्किट या फिर RLC सर्किट। तो यू नो वेरी वेल अबाउट RLC सर्किट, यस और नो? आता था ना 11th-12th में? Yes, sir. Yes, sir. Sir. हाँ, तो by applying Kirchhoff's voltage law to LCR circuit, the second order differential equation is L d square q by dt square plus R dq by dt plus q by c is equal to E into sin pt is generated, where q is the charge on a plate of condenser, R is the resistor, L is the inductor, T is the time and E sin pt is electromotive force। तो अब ये कैसे आया वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो, तो यहाँ पे मुझे वो बताओ पहले कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है। एनीबॉडी, व्हाट इज द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ? So voltage all around the loop is the sum of voltage is 0. सम ऑफ द वोल्टेज इज जीरो, या फिर अदर देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट, Sum of the voltage is equal to total applied voltage. that means we can say that the total voltage low at the input is equal to the total voltage of the output, yes or no? Yes, sir. तो यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल RLC सर्किट है, तो मैं मेरे RLC है, तो कैन वी राइट इन दिस वे, VR प्लस RL and C, that means VC is equal to electromotive force, yes or no? Means voltage drop in R plus voltage drop in L plus voltage drop in C is equal to electromotive force. Is it the correct Kirchhoff's voltage law, yes or no? यही है ना? Yes, sir. हाँ, ओके। अब देखो, VR की अगर हम देखेंगे तो जो VR है, सो दिस इज द टर्म फॉर द वोल्टेज ड्रॉप VR। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो R इंटू डी क्यू बाई डी टी, ओके, दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप इन द रेजिस्टेंस R, ओके, प्लस VL मीन्स वोल्टेज ड्रॉप इन द क्या होगा, इंडक्टेंस। तो यहाँ पे देखो, L d square q by dt square is the voltage drop in the inductance,
प्लस VC, VC मीन्स वोल्टेज ड्रॉप इन दी, क्या होगा, कंडेंसर, है ना। तो यहाँ पे देखो VC, यहाँ पे आपको मिलेगा Q/C इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फिक्स किया हुआ है E sin PT, सो दिस इज योर E sin PT, ओके। सो दिस इज द differential equation by, this is the differential equation of RLC circuit by using the Kirchhoff's voltage law. अंडरस्टैंड एवरीबॉडी, कैसे ये आया, समझ में आया कि नहीं? स्टूडेंट, आर यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. What about others? Yes, sir. Okay, so this is the Yes, sir. one of the application, real world application for the modeling of the higher order linear differential equation. Okay, second is the spring problem. ये आपने एक्सपेरिमेंट किया था 11-12 में, किया था कि नहीं? Have you done this experiment? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे देखो, सो फ्री ऑसिलेशन, सो एग्जाम्पल फ्री ऑसिलेशन, सो यहाँ पे कंसिडर स्प्रिंग OA, मैंने यहाँ O से A तक का एक स्प्रिंग लिया हुआ है, सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम अ फिक्स सपोर्ट एट O, मीन्स यहाँ पे O फिक्स किया गया है, ओके। लेट अ बॉडी ऑफ मास बीइंग लार्ज इन कंपैरिजन विद मास ऑफ द स्प्रिंग, मीन्स जो स्प्रिंग के नीचे मास लगाया हुआ है उससे बॉडी थोड़ा ज़्यादा है, मीन्स लार्ज, ओके। दैट द लेटर में बी नेग्लेक्टेड, मीन्स ये जो हम यहाँ पे एजम्पशन ले रहे हैं वो बाद में हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, okay. So let E is equal to AB be the elongation produced by the mass hanging in equilibrium, means E जो है, जो स्ट्रेस यहाँ पे स्प्रिंग यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो जो E है वो क्या है, उसका elongation है, elongation produced by the mass hanging in the equilibrium, and then B is called the position of static equilibrium, means A से B तक हो जाएगा कि नहीं, स्प्रिंग को आप छोड़ देंगे तो जाएगा ना. So this is your B. Okay. Understand, student? सर एक Yes, बार sir. काफी समझाओ सर। रिपीट करो. हाँ देखो, यहाँ पे जो किया था वही है कि ये एक स्प्रिंग लिया हुआ है, वो स्प्रिंग है उसको हमने OA पे रखा हुआ है, मीन्स O जो है वो फिक्स किया हुआ है O पे, सो O से A तक लिया, ओके। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे कोई मास लगाते हैं उसके नीचे, स्प्रिंग के नीचे, तो जो स्प्रिंग के नीचे जो मास है वो थोड़ा नीचे चला जाएगा, अगर आप उसको मोमेंटम देंगे तो वो ऐसे वाइब्रेट होता रहेगा कि नहीं, यस और नो? Yes, sir. sir. हाँ, तो जो ये sir. ऑसिलेट हो रहा है, ओके, तो उसमें ये जो एंड है उसका, उसको मैंने ए बोला हुआ है, दूसरा जो हम एजम्पशन ले रहे हैं कि बीच में कहीं पर भी वो बी होगा, और वो जो बी पे उसका स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, मीन्स वो थोड़ी देर बाद वो वहीं पे स्टॉप होगा. अंडरस्टैंड? Okay, Yes, sir. sir. ओके, तो ए टू बी का वो डिस्टेंस थोड़ा मूवमेंट देगा, मीन्स आफ्टर स्टैटिक इक्विलिब्रियम. अब उसके बाद क्या है कि के जो है इज द रिस्टोरिंग फोर्स, मीन्स वो वापस आएगा तो उसका जो फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स वापस आने के लिए, वो के, ओके, पर यूनिट स्ट्रेस ऑफ द स्प्रिंग ड्यू टू द इलास्टिसिटी, मीन्स वो आप छोड़ देंगे उसको तो वापस जो आएगा वो फोर्स है, वो के है. अंडरस्टैंड? Yes, sir. और जो ए बी मीन्स ए से बी गया है उसको हमने ई बोला हुआ है, ओके. तो अब इक्विलिब्रियम बी पे, जो इक्विलिब्रियम एट बी जो है वो क्या होगा, ये जो इसका मास है वो m इंटू जी इज इक्वल टू के इंटू ये होगा कि नहीं, जितना भी वो मोमेंटम देंगे उतना, Yes, sir. ओके. सो दिस इज द एम जी इज इक्वल टू के ड्यू टू द इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम मीन्स उसको हमने सेम लिया हुआ है, ओके. सो एम जी इज इक्वल टू के ही हो जाएगा. अब लेट द मास बी डिस्प्लेस्ड थ्रू अ फर्दर डिस्प्लेसमेंट वाई, मीन्स जो ऑसिलेशन करेंगे तो वो बी पे तो स्टॉप होगा नहीं, वो उससे ज़्यादा ही आगे बढ़ रहा है,
ये तो आफ्टर रिस्टोरिंग बी पे आएगा। तो जो आगे वाला जो है उसको हमने y बोल दिया, बोल सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. ओके, तो जो y है बी द इक्विलिब्रियम फॉर द डिस्टेंस y फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन्स इक्विलिब्रियम पोजीशन जो b है उससे जितना भी आगे डिस्टेंस जाएगा उसको हम y बोलेंगे। तो ये जो y है उसको यहाँ पे मोमेंटम मिल रहा है, तो मोमेंटम से अगर आप देखेंगे तो इट इज़ नथिंग बट द एक्सीलरेशन ऑफ दैट मास। यस और नो? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा ना स्टूडेंट? Yes, sir. Yes. ओके, लेकिन यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगा, मीन्स वो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, इसलिए उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। ओके, वो वेलोसिटी का एक्सेलरेशन नहीं है ना, सॉरी वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज नहीं है, वो पोजीशन का है, लेकिन 2 टाइम्स, दैट मीन्स द एक्सेलरेशन ऑफ द मास m एट दिस पोजीशन इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम 2 टाइम्स जो डिफ्रेंशिएशन करते हैं उसको हम फिजिकली एक्सेलरेशन बोलते हैं। ओके, एंड द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन इट आर वेट mg डाउनवर्ड्स एंड रिस्टोरिंग फोर्स के। तो यहाँ पे जैसे हमने के ई लिया था, के इंटू ई, तो y के लिए क्या होगा? सो के ई तो था प्लस वाई होगा कि नहीं, और नेगेटिव साइड जा रहा है इसलिए माइनस के ई प्लस वाई होगा। यस और नो स्टूडेंट? ये आपको पढ़ाया गया होगा एक्सपेरिमेंट में, सिर्फ मैं आपको कंडीशन यहाँ पे कैसे आ रहा है वो आपको डिफाइन करके दे रहा हूँ। सो आर यू अंडरस्टैंड सिचुएशन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा हमारा ये अब तक का डिस्कशन, मीन्स हमने जितने भी फोर्स थे वो फोर्स डिफाइन कर दिया, एक्सेलरेशन डिफाइन कर दिया, इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिफाइन कर दिया। नाउ वी गो फॉर द न्यूटन्स कूलिंग लॉ, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आया, दैट मीन्स वी आर कंसिडरिंग वन टाइप ऑफ मोशन, और मोशन के लिए हम न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। तो व्हाट इज वन न्यूटन सेकंड लॉ? एफ इज इक्वल टू एम ए। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. एम इंटू यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन विल बी अवर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, अब एफ जो है वो कितने यहाँ पे फोर्स यहाँ पे लग रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट जो फोर्स है उसका एम इंटू जी है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ एम का जो आएगा वो, सो एम जी इज़ अवर फर्स्ट फोर्स। और ये सेकंड फोर्स जो है वो हमने बोला कि उसका जो है वो ये फोर्स माइनस के ई प्लस वाई, और हमने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, सो रिस्टोरिंग फोर्स विल बी के ई प्लस वाई, बट यहाँ पे वो नेगेटिव साइड पे लग रहा है इसलिए उसको माइनस के साथ लिखा हुआ है, सो माइनस के ई प्लस वाई। सो इज देयर एनी डाउट अप टू हियर एनीबडी? No, sir. ओके, अब इसको हम ओपन करो तो क्या होगा, देखो mg को हमने बोला है कि इक्विलिब्रियम पे वो के ई होगा, सो के ई मैंने उसकी जगह पे लिख दिया। अब यहाँ पे एक माइनस के ई छूट गया है, तो यहाँ पे देखो माइनस के इंटू ई माइनस के इंटू वाई, सो यहाँ पे माइनस के ई माइनस के वाई। अब ये प्लस एंड माइनस है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, सो माइनस के वाई बचेगा, सो दिस इज माई माइनस के वाई। तो इसको आप अच्छी तरीके से लिखेंगे तो क्या मिलेगा, एम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू वाई इज इक्वल टू 0। यस और नो? यस और नो स्टूडेंट? Yes, sir. So our differential equation for the free oscillation case of the spring momentum will be d square y by dx square plus k by my is equal to 0. So this is the higher order, means second order linear differential equation. So you can see that this is the wonderful application of the real world problem. तो ये भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ही है, हम ये डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ऐसा, है ना। तो ये जो है दिस इज़ दी अनदर एग्जांपल फॉर दी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इज़ देयर एनी डाउट इन दी 2.1 एनीबडी? कैसे एग्जांपल्स हम डिस्कस कर सकते हैं स्टूडेंट? एनी प्रॉब्लम इन No, 2.1? sir. ओके, थैंक यू। व्हाट No, अबाउट अदर्स? no, प्लीज गिव योर Sir. कंफर्मेशन। no, sir. थैंक यू।
Okay, now we go for the our core part of our unit. So core part में यहाँ से हमारा start हो रहा है. So linear differential equations are those differential equation in which the dependent variable and its derivative occur only in the first degree. Means अगर dependent variable का derivative आए या फिर dependent variable आए उसके पास एक ही डिग्री होना चाहिए तो अब उसको linear differential equation बोलते हैं. For example, if you notice that this is the linear differential equation, yes or no, हमने किया था ना, किया था कि नहीं? Yes, sir. Yes. ओके. सो अब यहाँ पे देखो इसमें y आएगा, दैट मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल. सो y का पावर जितनी भी टर्म होगी उसमें मैक्सिमम 1 ही होगा. अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके. अब देखो यही लिखा हुआ है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आर दोज डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव अकर ओनली इन द फर्स्ट डिग्री. ओके, मीन्स एक ही डिग्री में होना चाहिए. आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर. मीन्स इसकी जगह पे अगर कोई ऐसा लिख दे y प्लस पी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, या फिर चलो यहाँ से वाई स्क्वायर भी निकाल देता. ओके, तो ये जो है वो लीनियर नहीं रहेगा. क्यों लीनियर नहीं रहेगा? क्योंकि हमने यहाँ पे y 2 बार यूज़ किया हुआ है, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स. सो दिस विल नॉट बी अ लीनियर. अंडरस्टैंड एवरीबडी? फिर से रिपीट कर रहा हूँ Yeah. कि मल्टीप्लाइड टूगेदर. यस यस, एनी क्वेश्चन बेटा? यस. एनी क्वेश्चन? Repeat कर दो ना आप बस એટલું જ. हाँ हाँ, रिपीट कर रहा हूँ. देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हमने पढ़ा था, लेकिन उसको इस नज़रिए से आपने नहीं देखा था, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है या फिर उसका डिफरेंशिएशन मीन्स उसके डेरिवेटिव टर्म. ओके, वो दोनों के पास एक ही बार वो होना चाहिए. अगर मोर देन 1 बार हो जाता है या फिर वो दोनों के प्रोडक्ट में आप लिख देते हो, देन इट विल नॉट बी अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. मीन्स मल्टीप्लाई करने के बाद अगर लिख दिया है तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रहेगा. अंडरस्टैंड? नाउ गॉट इट स्टूडेंट? Yes, sir. ओके, तो मैंने बोला कि दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बट दिस इज नॉट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट में है. देखो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्रोडक्ट में, तो ऐसा हम को केस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं लेना है. सो दिस इज नॉट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो एवरीबडी अंडरस्टैंड? यस और नो? जल्दी क्विक योर रिस्पॉन्स. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now we go for the our general form. Okay, so the general form of linear differential equation of nth order means more than one के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हम सीधा nth के लिए ही डिस्कस करेंगे. So the general form of the linear differential equation of nth order is d raised to n y by dx raised to n plus p1 x d raised to n minus 1 y upon dx raised to n minus 1 up to n pn minus 1 x dy by dx plus pn x y is equal to r of x. But here if you see, so p1x, p2x, p3x up to pn minus 1x, pnx, all are the functions of x. Okay, and r of x is also the function of x. Understand? Yes, sir. Yes, sir. So ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है में उसमें हमारे पास 2 पार्ट्स हो गए कि जो P1, P2, P3, PNX है वो अगर वेरिएबल है तो वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल कोएफिशिएंट इक्वेशन. अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड स्टूडेंट? आर यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. और अगर वो कांस्टेंट है तो वो क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन.
ओके, तो यहाँ पे देखो जो सेकंड नीचे लिखा हुआ है उसमें सारे कांस्टेंट कर दिया। देखो डी रेस टू एन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन प्लस पी वन डी रेस टू एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन माइनस वन अप टू सेंड पी एन माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एन वाई इज इक्वल और वेयर पी वन पी टू अप टू सेंड पी एन आर कॉन्स्टेंट्स एंड आर ऑफ एक्स इज फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। अंडरस्टैंड एवरीबडी? ये वन नहीं लेगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? Yes, sir. चलो एग्जाम्पल देता हूँ तो जल्दी पता चलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे मेरा एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ प्लस यहाँ पे 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो ये हुआ एंड इसके लिए इस तरीके से दिखेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 5। सो ये जो है इसमें देखो तो सारे जो भी टर्म है कोफिशिएंट है वो सारे कैसे हैं? कांस्टेंट है। सो इसको बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके, और ये जो इक्वेशन है उसमें जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है डी वाई बाई डी एक्स है उसके आगे वेरिएबल फॉर्म है, वेरिएबल कोफिशिएंट है। ओके, तो उसको बोलेंगे कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, अब यहाँ पे मैंने 3 लिखा था तो उसको थोड़ा ज़्यादा लिख देता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 4x। ओके, और यहाँ पे इसको 0 कर देता हूँ। तो ये बात हमने की कोफिशिएंट के लिए। तो कोफिशिएंट के लिए हमको 2 डिफरेंट पार्ट मिले, कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड वेरिएबल कोफिशिएंट। तो एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। Yes, sir. अब सिमिलरली आर ऑफ एक्स से हमको 2 चीज़ मिलेगा। सो आर ऑफ एक्स अगर 0 होता है और नॉन जीरो होता है, जब जीरो होता है तब उसको बोलेंगे होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड जब नॉट इक्वल टू जीरो होगा तब बोलेंगे नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? यस सर। सो यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो भी हमारा इक्वेशन 1 है उसमें से हमारे यूनिट में हम उसको 4 चीज़ की तरह देखेंगे। इक्वेशन 1 को 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेराइटीज वी कैन डिड्यूस फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, सो फर्स्ट क्या है कि उसके जो कोफिशिएंट है वो अगर x वाले हैं मीन्स वेरिएबल वाले हैं तो उसको बोलेंगे वेरिएबल कोफिशिएंट इक्वेशन। उस तब आर ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता है। ओके, और जब वो सारे कोफिशिएंट कांस्टेंट हैं तो उसको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो ये 2 चीज़ पहले पता चल गया सबको? स्टूडेंट, वेरिएबल Yes, sir. कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट कोफिशिएंट। ओके, ये दोनों थोड़ा कीप इन योर माइंड। अब आर ऑफ एक्स पे अगर कंडीशन है तो आर ऑफ एक्स के लिए सोचे तो आर ऑफ एक्स मे बी 0 और आर ऑफ एक्स मे नॉट बी 0। ओके, तो आर ऑफ एक्स जब 0 है तब उसका नेम बोलेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड जब आर ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 है तब बोलेंगे नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? नो सर। ओके, तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ लिखा हुआ है। देखो फर्स्ट में मैंने वेरिएबल कोफिशिएंट विथ नॉन जीरो आर ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, इसको क्या बोलेंगे? नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। ओके, एंड सेकंड जो मैंने लिखा है उसको बोलेंगे होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? यस सर। ओके, चलो तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सो इफ आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 देन इक्वेशन 1 फॉर ऑल एक्स देन इट रिड्यूसेस टू डी एन वाई बाई डी एक्स रेस टू एन प्लस पी वन डी रेस टू एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन माइनस वन अप टू सो एन पी एन माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एन वाई इज इक्वल टू 0, and it is called the homogeneous linear differential equation of order n. And if r of x not equal to 0 then equation 1 is called the non-homogeneous linear differential equation of order n. Now note, अगर आप नोट देखेंगे तो नोट तो सिंपल है कि अगर y1 एंड y2 दो ये इक्वेशन के सॉल्यूशन है, ओके, तो वो दोनों का एडिशन करूँ ना तो पर भी वो क्या रहेंगे? सॉल्यूशन रहेंगे ही रहेंगे, प्लस उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करूँ ना तो भी वो सॉल्यूशन रहेंगे ही रहेंगे। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी?
पता Yes, sir. ओके मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। अगर y1 एंड y2 दो ये सॉल्यूशन के दो ये डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं, तो आप अगर वो दोनों का एडिशन करो या फिर कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करके एडिशन करो, वो भी उसका सॉल्यूशन होगा ही होगा। सो अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? Yes, sir. सर। ओके अब यही कॉन्सेप्ट को अगर हम एक्सटेंड करें तो एन सॉल्यूशन के लिए, ओके सो y1 y2 ऑपरेशन yn आर एन सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 1, देन सेम क्राइटेरिया यहाँ पे c1 इंटू वाई वन एक्स प्लस c2 इंटू वाई टू एक्स अप टू cn इंटू वाई एन एक्स, ओके वो भी उसका सॉल्यूशन रहेगा ही रहेगा। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? Yes, ये sir. समझ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो जो nth ऑर्डर है तो उसके n सॉल्यूशन मिलेंगे, है ना? तो n सॉल्यूशन Yes. मिलेंगे, तो n सॉल्यूशन अगर इस हिसाब से है कि y1 y2 ऑपरेशन yn, तो उसका अगर आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन लेके और सभी का एडिशन करेंगे तो वो भी सॉल्यूशन होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ऐसा दूँ कि इफ़ y1 इज इक्वल टू x एंड y2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, चलो एक्स क्यूब प्लस 2x plus 3, okay, both are the solution of टू सॉल्यूशन है, तो मैं सेकंड ऑर्डर ले रहा हूँ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस a1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस a2y is equal to x square, okay, both are the solution of this one. So which of the following is the another solution for this? तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में दिया है तो यहाँ पे x प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3, ओके, नंबर 2 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, नंबर 3 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3, एंड नंबर 4 में आपको दिया है 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3। तो इसमें से दो सॉल्यूशन है, चलो बताओ कौन कौन से सॉल्यूशन पॉसिबल है? एक तो फर्स्ट वाला, यस और नो, क्योंकि दोनों का मैंने एडिशन लिया है, देखो C1 एंड C2 मैंने 1 1 ले लिया, डन। स्टूडेंट आर यू गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. ओके, एंड नंबर 2 देखो, नंबर 2 में मैंने C1 को 3 ले लिया है, C2 को 4 लिया है, तो दिस इज ऑल्सो द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि वो तो हमारा नोट वही बता रहा है ना। अंडरस्टैंड? Yes, sir. बट जो थर्ड है उसमें मैंने रेसिप्रोकल लेके एडिशन किया है, तो इट इज़ नॉट ट्रू, ये भी नहीं ले सकते। अंडरस्टैंड? फंक्शन जो है मीन्स जो आपको फंक्शन दिया है उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते आप, सिर्फ उसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर सकते हो, दैट इज द कंडीशन गिवन इन नोट नंबर 1 एंड नोट नंबर 2। नाउ इज देयर एनी डाउट इन नोट नंबर 1 एंड नोट नंबर 2? एनीबडी? No, sir. Okay, now I think it is clear. Okay, now we go for the note number 3. Note number 3 says that if y is equal to v be a particular solution of equation 1, then y is equal to u plus v is the general solution of equation 1। तो यहाँ पे देखो y is equal to particular solution, तो हम यूनिट 1 में पढ़े थे क्या होता है particular solution, what you mean by particular solution? At any condition, C की वैल्यू रख हाँ, के इक्वेशन मिलेगी। means if you have the solution with the arbitrary constant, then it is known as the general solution, and if you have the value of the arbitrary constant in the solution, then you can say that it is the particular solution। Understand? Yes or no? Is it true? Yes, sir. ओके, नाउ सिमिलरली यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू यू प्लस वी, तो मीन्स v जो है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम ले रहे हैं, तो u तो मैं हमने ये देखो आर्बिटरी कांस्टेंट वाला था ना, उसको हमने u बोला है, तो आर्बिटरी कांस्टेंट वाला जो था वो u पार्ट हुआ प्लस v पार्ट करेंगे, तब जाके वो क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 हो जाएगा। नाउ गॉट इट? अंडरस्टैंड स्टूडेंट? Yes, sir.
तो यहाँ पे देखो नोट नंबर 3 जो है ना वो आपको ऐसे सजेस्ट कर रहा है कि ये दिस इज माई डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन के पास कितने सॉल्यूशन है? 2 सॉल्यूशंस है। नंबर 1 जो है वो u है एंड नंबर 2 जो है वो v है। ओके, तो ये जो u पार्ट है वो उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड जो v पार्ट है उसको बोलेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जो भी इक्वेशन 1 है rx के साथ वाला, ओके, तो उसका सॉल्यूशन ऑलवेज ऐसे फॉर्म में होगा y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। वाई सी मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड वाई पी मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, तो वाई सी जो है वो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो जो आर ऑफ एक्स इक्वल टू 0 वाला जो हम केस कंसिडर करेंगे उससे जो सॉल्यूशन मिलेगा इट विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। एंड जब आर ऑफ एक्स नॉन जीरो वाला हम कंसिडर करके जो फाइंड करेंगे उसका जो सॉल्यूशन मिलेगा दैट विल बी द पर्टिकुलर इंटीग्रल। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके, सो दिस इज अबाउट द नोट नंबर 3। मीन्स ये दोनों का एडिशन मीन्स जनरल प्लस पर्टिकुलर, दोनों का अगर आप एडिशन करेंगे देन इट विल बी द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। जो जैसे मैंने बताया ऐसे यहाँ पे देखो u इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड द सेकंड पार्ट v इज फ्री फ्रॉम एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सो कॉल द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन 1। ओके, नाउ देयर इज ए स्मॉल टॉपिक, इट इज़ द डिफरेंशियल ऑपरेटर। सो डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या करना है? सो डी आपको रिप्लेस करना है। जहाँ जहाँ पर भी आप डी बाई डी एक्स देखते हो वहाँ पे आपको डी रिप्लेस करना है। सो द सिंबल डी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स स्टैंड्स फॉर द डिफरेंशियल ऑपरेटर। सो इफ़ यू राइट डी वाई दैट इट इंडिकेट्स डी वाई बाई डी एक्स। ओके, डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर वाई मीन्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स वाई, डी रेस टू एन वाई मीन्स डी रेस टू एन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन। अगर ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन 1 में रिप्लेस करें तो ये फॉर्म मिलेगा कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. है ना, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म है वो हमारा क्या है? डी रेस टू एन वाई बाई डी एक्स रेस टू एन, सो इट विल बी डी रेस टू एन वाई प्लस पी वन वाई, पी वन एक्स जो था वो हमारा कोफिशिएंट था, यहाँ पे था डी रेस टू एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन माइनस वन। ओके, तो यहाँ पे डी रेस टू एन माइनस वन इंटू वाई हो जाएगा एंड ऐसे करते करते सो ऑन पी एन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा नया ये है कि यहाँ पे जो है उसको हम एफ ऑफ डी बोलेंगे, जो वाई सभी में से कॉमन लेके जो भी कोफिशिएंट मिलेगा उसको एफ ऑफ डी बोलेंगे। सो एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स। तो जो ये बड़ा फॉर्म था हमारा, है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म का, उसको अगर मुझे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हाउ वी कैन राइट? सो एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स। Yes or no? By using the differential operator. Can we write in this way, student? लिख सकते हैं ना स्टूडेंट? Sir, not good. Repeat करो. ओके ओके ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो ऑपरेटर है हमने डिफाइन किया डी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स और यहाँ पे डी वाई डी स्क्वायर वाई डी रेस टू एन वाई। तो ये जो पूरा फॉर्म नया मिला वो क्या हुआ? एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स। और एफ ऑफ डी को मैं अगर इस तरीके से लिखता हूँ तो मेरा इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? देखो इक्वेशन 1 ऐसे हो जाएगा एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ डी जो होगा वो मेरा डी रेस टू एन प्लस पी वन एक्स इंटू डी रेस टू एन माइनस वन प्लस सो ऑन, यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा पी एन एक्स, बाहर y चला जाएगा एंड यहाँ पे आर ऑफ एक्स तो है ही। ओके, तो ये जो है इट विल बी दी अवर एफ ऑफ डी, बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ डी। यस और नो? यस सर। ओके, और यहाँ पे y तो था और आर ऑफ, तो ये जो बड़ा था एक्सप्रेशन उसको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉरी डिफरेंशियल ऑपरेटर की हेल्प से लिखना है। तो व्हाट वी कैन राइट? एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स। सो नाउ इज इट ओके? Yes, sir. Okay, so is there any doubt, any question in today's session? Anybody? No, sir. What about No that? sir. Okay, I want confirmation from all the students, please. Sir. No, sir. No, sir.
No, sir. No, sir. Okay, thank you for your confirmation.